دائم خانزادہ اس وقت تپتے دماغ کے ساتھ گھر کے لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شدید گرمی میں لگاتار 3 لیکچرز کی وجہ سے وہ کینٹین بھی نہ جا سکا، اس لیے اب بھوک اور پیاس اپنے زوروں پر تھی۔ جلد از جلد گھر پہنچ کر اب اس کا ارادہ کھانا کھاتے ہی لمبی تان کر سونے کا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی کالونی میں داخل ہو گیا۔ گھر کے قریب کی گلی میں پہنچتے ہی اس کی نظر گھر کے سامنے لڑکوں سے کھیلتی مسفرہ پہ پڑی تو دماغ ایک دم آؤٹ ہو گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز، جینس پر شارٹ کرتا پہنے، پسینے سے نہائے ہوئے وجود کے ساتھ بیٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ بالوں کی پونی ٹیل ڈھیلی ہو گئی تھی، جبکہ اس سے نکلے ہوئے بال گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ملازموں کے 2 بچے تھے جن کی مائیں ان کی کوٹھی میں کام کرتی تھیں۔ اس وقت ہر سڑکوں سے گلیوں تک ہر طرف سناٹا تھا۔ تھکے ہارے لوگ واپس لوٹ کر آرام میں مصروف تھے۔ ایسے میں اس کا یوں باہر کھیلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس وقت وہ کسی کی غلط نظروں کے حصار میں آ سکتی تھی۔ حالات تو لڑکی کیا لڑکوں کے لیے بھی ناساز تھے۔ ایسے میں خود سے اس قدر لاپرواہی پر اس کے دماغ کا گھومنا تو بنتا تھا۔ گاڑی کو جھٹکے سے ایک طرف روکتے وہ باہر نکلا، مگر وہ اس سے بے نیاز ابھی اپنے کھیل میں گم تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے دھاڑ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی لہجے کو نرم نہ رکھ سکا، جس پر وہ ایک دم ڈر گئی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا کیسے؟ اس پر نظر پڑتے ہی ڈر غصے میں تبدیل ہو گیا۔ گھر چلو پھر بتاتا ہوں۔ تپتی دھوپ میں مزید کھڑا رہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ارادہ اسے لے کر گھر جانے کا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ہاتھ کھینچ گئی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ صفی، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ سڑک پر تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر اسے کون سمجھائے۔ آپ کا دماغ تو ویسے بھی خراب ہے، ابھی دادو سے صحیح کرواتی ہوں۔ وہ بیٹ زور سے وہیں پھینک کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ دائم کا ارادہ مزید برداشت کا نہ تھا، ویسے بھی ابھی گھر جا کر پیشی پڑنی تھی، اس لیے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس سے گاڑی گزارتے اس نے آفر بھی نہ کی، جانتا تھا وہ جب تک اسے ڈانٹ نہیں پڑوائے گی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ گھر کے گیٹ کے پاس سائے میں گاڑی کھڑی کی۔ فی الحال باہر نکل کر گیٹ کھول کر اندر لے جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ گیٹ حسب توقع لاک نہیں تھا، جو مسفرہ میڈم کا کارنامہ تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی اس نے اپنا بیگ ڈرائنگ روم میں رکھا اور خود کچن کی طرف آ گیا۔ وہاں کا پنکھا چلاتے اس نے سنک کے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے اور فریج سے پانی کی بوتل لے کر پانی پیتے وہیں کرسی پر بیٹھ کر کھانا سامنے کیا۔ اس کے آنے پر مسرت بیگم یہی موجود رہ کر اس کے لیے کھانا نکالتی تھی، مگر آج گیٹ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے آنے سے آگاہ نہ ہو سکی۔ اس نے ڈونگے میں موجود کوفتے کا سالن پلیٹ میں ڈالا اور ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر کھانے لگا۔ اسی دوران گیٹ لگنے سے ٹھاک کی آواز آئی، یعنی آفت گھر میں قدم رکھ چکی تھی۔ متوقع بے عزتی کا خیال جھٹک کر اس نے کھانا کھانے پر دھیان دیا۔ ارے تم کب آئے؟ مسرت بیگم گیٹ کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ ابھی آیا ہوں۔ اس نے مسکرا کر ماں کو تسلی دی۔ بتایا کیوں نہیں؟ کھانا گرم کر دیتی۔ انہیں تعصف ہوا۔ گرم ہی ہے اور مجھے بھوک بہت لگی تھی، آپ بس چائے بنا دیں۔ اس نے التجا کی۔ تم تو کھانے کے فوراً بعد نہیں پیتے؟ انہیں تعجب ہوا۔ ماں جی، اگر ابھی نہ پی سکا تو پھر رات تک کے لیے نہیں پی سکوں گا۔ وہ اپنی آنے والی شامت سے آگاہ تھا۔ مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چائے بنائیں پھر بتاتا ہوں۔ ان کے چائے بنانے تک اس نے کھانا کھا لیا۔ اب بتاؤ۔ چائے کا کپ سامنے رکھتے اس نے پوچھا، جس پر اس نے ساری روداد سنا دی۔ تم نے اسے ڈانٹا کیوں؟ وہ اب رو رہی ہوگی۔ انہیں بھی اس کی فکر ہوئی۔ لاڈلی تو سب کی تھی، آپ بھی بجائے اس کے مجھے غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ شاکی ہوا۔ تم جانتے ہو باہر جتنی بھی مضبوط بنے، چاہے 10 لڑکوں کو پیٹ لے، مگر گھر والوں کی سخت نکاح بھی دل پر لے لیتی ہے۔ امی یہ صحیح بات تو ہرگز نہیں۔ اب وہ بچی نہیں رہی، اسے سمجھانا نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ ان حالات میں اس کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تم جانتے ہو اس بارے میں تمہاری دادی کسی کی نہیں سنتی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی بیجا طرفداری مسفرہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چائے کا کپ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے دادی کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہی تھی۔ نانو، انہیں دیکھ کر اس نے سسکی لی، پھر اسی حالت میں اس کے ساتھ لپٹ کر ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ خیر! گہری نیند سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے روتا دیکھ کر ان کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ صفی، کیا ہوا تجھے؟ اس کا رونا تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے مزید رونے لگی۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اسے خود سے لپٹائے پیار کرنے لگی۔ دائم نے مجھے ڈانٹا، ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کیوں؟ انہیں شدید حیرت ہوئی۔ وہ اسے ساتھ لیے اٹھی۔
मैं तो बाहर क्रिकेट खेल रही थी तो यूनिवर्सिटी से आया और डांटना शुरू कर दिया, कहते हुए अपने आंसू पोंछे। तू यहाँ मेरे पास लेटी थी, फिर बाहर कैसे निकल गई? वो उसे अपने पास लिटा कर सोई थी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर निकल गई। रोना भूलकर वो अब अपनी सफाई देने लगी। इस शिकर दोपहर घर से बाहर खेलना कितना खतरनाक है। वो खुद उससे थोड़ा बहुत कह लिया करती थी, मगर किसी और की मजाल ना थी कुछ कहने की। यहीं गली के मोड़ पर तो गई थी, इस पर भी वो मुझ पर चीखे और गाड़ी में साथ भी नहीं लेकर आए। उसने सब दोहराया ताकि उस पर से ध्यान हटे। उसने तो मैं पूछती हूँ, तो नहाकर कपड़े बदल कर आ। वो उससे पीछे हटाने लगी। अभी नहीं, वो मिनमिनाई, और आगे से उसने तेरी हालत पर नजर दौड़ाई तो कैसे उसे जवाब दूंगी। उनकी बात पर वो चारों नचारों से उठना पड़ा। मुसर्रत बेगम दायम के कमरे में जाने के बाद उसके बर्तन धोकर किचन से बाहर आई। सामने से हाजरा खातून आती दिखी, साथ मुस्फिरा भी थी। दायम को बुलाकर लाओ। उनका लहजा हतमी था, इनकार की कोई गुंजाइश न थी। वो खामोशी से उसके कमरे की तरफ बढ़ी। आ गया बुलावा? वो बेचारा भी लेटा ही था कि अम्मी के आने पर उठ बैठा। आ जाओ, वो कहकर बाहर जाने लगी। दादू को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ उसकी भलाई चाहते हैं। वो झुंझुला गया। तुम अपने लहजे पर काबू रखना और उनसे तमीज से बात करना। वो उसके गुस्से के पेश नजर वार्न करना नहीं भूली थी। जी। वो अपने ठंडे कमरे को हसरत की निगाह से देखता बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम। वो उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। देखिए लहजे में जवाब मिला। वो उनके सामने सोफे पर आ बैठा। मियाँ, ये तुम लोगों को मेरी नवासी से मसला क्या है, जो हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो? उनका यही सख्त चुपता अंदाज था जो बाकी सबको तकलीफ देता था। सभी उनकी बेपनाह इज्जत करते थे, मगर वो मुस्फिरा के मामले में किसी को कुछ नहीं जानती थी। दादू, कोई मसला नहीं है, मैं तो इसके भले के लिए कह रहा था। वो सफाई देने लगा। इसका भला चाहने के लिए इसके बड़े मौजूद हैं, तुम अपनी फिक्र करो। वो कौन सा उसकी बातों पर कान धरती थी। दादो, ये मेरी भी तो कुछ लगती है, मैं इसका बुरा तो नहीं चाहूंगा ना। वो मान से उन्हें मनाने लगा। बस करो, जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ। ये जो तुम लोग जरा सा लिहाज कर लेते हो मेरी वजह से है। मेरे मरने के बाद तो तुम लोग इसका जीना हराम कर दोगे। वो इंतहाई बदगुमान थी। दादो, कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। वो उनके पास आ बैठा। मेरी इतनी फिक्र होती तो मेरी सफी को ना डांटते, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। वो उसकी तरफ देख कर बोली। दायम ने जैसे ही उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, जिस पर वो मुंह फुलाकर निगाह फेर गई, नाराजगी का शदीद इजहार था। अच्छा, माफ कर दें और मान जाएं। वो उन्हें कहाँ नाराज देख सकता था। मैं तब तक बात नहीं करूंगी जब तक सफी नहीं मान जाएगी। उन्होंने रुख मोड़ा। अच्छा, मैं इससे भी माफी मांग लूंगा। उससे ठंडा हुआ तो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बात पर मुस्फिरा मैडम नाक चढ़ाकर अपने कमरे में चली गई। जब वो मान जाए तब मुझसे बात करना। अब वो भी उठकर चली गई, जिस पर उसने गहरा सांस भरा। अब बीवी को मनाने की तैयारी पकड़ो। वो उसके पास बैठी। अभी यह हाल है तो बेगम बनकर क्या करेगी? वो मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। जानते हो कि उस पर गुस्सा करके आप नहीं नुकसान करते हो तो बाज रहा करो। अब आपके अंदर सास वाली रूह आ गई है। वो उन्हें छेड़ने लगा। जाकर आराम करो, फिर तुम्हें मार्ट जाना है। उन्हें तरस आया। वो भी सर झटक कर कमरे में चला गया। ये घराना अहमद खानजादा के जेरे साया है, जिनकी 3 औलादों, 2 बेटे कुतुब खानजादा और राफे और एक बेटी नरमीन खानजादा थी। कुतुब साहब का एक बेटा दाइम और एक बेटी हानिया थी। राफे साहब के 2 बेटे और साहब की एक बेटी थी। सबसे छोटी नरमीन की एक ही बेटी मुस्फिरा है। मुस्फिरा के 3 साल के होते ही उसकी वालदा एक मौजी मर्ज का शिकार होकर जान से हार गई। इस चीज का हाजरा बेगम को बहुत सदमा लगा, जिस पर काफी अर्सा वो अलील रही। मुस्फिरा अपने दरियाल में रही। कुछ अरसे बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। हाजरा बेगम की अदालत की वजह से उनका ज्यादा जाना ना हुआ। जाते तो पहले इतला देकर। वो कुछ बेहतर हुई तो अचानक ही बड़े बेटे के हमरा नवासी से मिलने जा पहुंची, जहां वो गिरने की वजह से सर पर बड़ा जख्म लिए मैली कुचैली फिर रही थी। जख्म के खराब होने की वजह से बुखार भी था। उसकी हालत देखकर उनका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। वो तो माँ की शहजादी थी, जिसे वो दिन में कितनी बार तैयार करवाती। उन्हें देखकर सब बहाने बनाने लगे। मुस्फिरा का बाप की अपनी तवज्जुहात थी। वो अब सिर्फ उसका नहीं था, उसकी जिंदगी में दूसरी औलाद आने वाली थी, इसलिए उसकी बीवी तो दूसरे ही महीने बेड रेस्ट पर थी। बाकी किसी से क्या कहते। वो उसे अपने साथ ले आए।
जहाँ हाजरा बेगम और मुसर्रत बेगम ने उसका खूब ख्याल किया, मगर ये वाक़या हाजरा बेगम के दिल में गिरह डाल गया था कि सिर्फ वही मुसफिरा की खैर ख्वाह हैं। वो अपनी बीमारी पर काबू पाते दबंग खातून का रूप धार चुकी थी ताकि कोई मुसफिरा के साथ ज्यादती ना कर सके। वो उनकी हद से ज्यादा लाडली थी। कुछ अरसे बाद उसका बाप उसे दोबारा लेने आ पहुंचा, मगर उन्होंने मुसफिरा को उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। वो तो वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहता था। उनके एक दफा मना करने पर वापस लौट गया, मगर उसकी दादी ने अना का मसला बना लिया। वो हर हाल में उसे वापस चाहती थी, इसीलिए खानदान के चंद बड़ों को ले आई। दोनों तरफ की बात सुनकर और मुसफिरा के वालिद की अदम दिलचस्पी पर वो इस बात पर राजी हुई कि इसका निकाह इसके ननियाल में कर दिया जाए। फिर कुछ ही दिनों में वो अपने से 6 साल बड़े दाइम खानज़ादा के निकाह में आ गई। अब उसकी हैसियत घर में मुस्तहकम हो गई। मुसर्रत बेगम तो उसे दिल से चाहती थी। उनके बेटे से जुड़कर वो उन्हें और भी अजीज हो गई, मगर राफी की बीवी दिल बड़ा न कर पाई। उनकी मुसफिरा से चिढ़ बढ़ने के साथ ही हाजरा बेगम का रवैया सख्त हो गया। हालात के पेश नजर अहमद साहब ने खुशी खुशी राफे को उसका हिस्सा देकर अलग कर दिया। वो भी रंजिश के गहरे होने से बचने के लिए उनकी बात मान गए। अब वो कभी कभार उनसे मिलने आते रहते थे। इस वाक़े के बाद हाजरा बेगम मजीद मुसफिरा के लिए कुनूती हो गई। कोई उससे सख्त तो क्या, हक बात भी नहीं कह सकता था। किसी के पास हक नहीं था कि उसकी गलती पर बासपुरस कर सके। उनके बेजा लाड प्यार ने उसे जिद्दी और हसास बना दिया था। वो सबसे प्यार तो करती थी, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती थी, मगर अपनी मर्जी करके रहते और अगर कोई कुछ कह देता तो उसकी पेशी दादी के हुजूर पक्की थी। शाम को सोकर उठा तो हानिया उसके लिए मिल्क शेक ले आई। बाबा और अब्बा आ गए। वो अपनी फाइल्स चेक करते पूछने लगा, जी थोड़ी देर पहले आए हैं, वो कहकर चली गई। अभी उसे मुसफिरा को भी उसका गिलास देना था। वो अपना गिलास लिए बाहर आ गया, जहां सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो सबको मुश्तरका सलाम करके बैठ गया। खानज़ादा साहब, आज आपने क्या हरकत की है? कुतुब साहब सख्ती से बोले। उन्हें उसका मुसफिरा पर गुस्सा करना बिल्कुल भी पसंद न आया। सॉरी बाबा, गलती हो गई। वह बार बार शर्मिंदा हो रहा था। आइंदा मैं ऐसी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, उन्होंने वार्न किया। पक्का आइंदा नहीं करूंगा, उसने दिल से कहा। मार्ट पर जाने का क्या इरादा है? वो उनके आने के बाद मार्ट चला जाता था। रात तक वहीं ऑफिस में बैठकर अपनी स्टडी भी करता और सब पर नजर भी रखता। रात को अपने सामने सब क्लियर करवाकर घर लौटता था। बस निकल रहा हूँ, आपसे एक फेवर चाहिए। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, जिस पर वो अबरूज खा गए, जैसे जानना चाह रहे हो। मेरी बीवी नाराज है, उसे मनाने के लिए जल्दी छुट्टी चाहिए। चेहरे को एकदम संजीदा रखा। ठीक है, मगर मुझे मुस्फिरा मुस्कुराती हुई नजर आनी चाहिए। वो खुद भी भांजे की खुशी चाहते थे। और अब्बा जी, अब उनकी बारी थी। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी डील डन समझे। उनके तसल्ली देते हुए अपना बैग लिए बाहर चला गया। कुतुब साहब अपने कमरे की तरफ गए तो अहमद साहब बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए। हाजरा बेगम दाइम हम पर ज्यादा उस पर हक रखता है, तो आप जरा नरमी का मुजाहरा क्या करें। वो सानिया से समझाने लगे। अगर मैं सख्ती ना करूं तो वो इसका जरा भी ख्याल ना करें। यह उनके जहन की अख्तरा थी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मुसर्रत और उसकी तबीयत में मोहब्बत शामिल है, इसलिए हाथ खुला रखा करें। वो इतना ही समझा सकते थे। वो मार्ट से वापसी पर उसके लिए स्नैक्स, चॉकलेट्स और बैलून्स लाया था। ये सब उसकी फेवरेट्स थी। वो इस वक्त लाउंज में हानिया के पास बैठी कुछ मालूमाती किताबें पढ़ रही थी। सारी शरारतों के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अब मेहनत भी दिल लगाकर करती थी। क्लास की फर्स्ट पोजीशन तो उसी के नाम थी। अभी मैट्रिक के पेपर्स के बाद वो फ्री थी। दिन भर मस्ती के बाद अब वो कुछ पढ़ रही थी। मोबाइल का उसे खास शौक न था। वो सिर्फ दोस्तों से जरूरी राब्ते तक इस्तेमाल करती थी। उसके आते हानिया पानी लेने चली गई। वो आकर उसके सामने बैठा तो वो नजरअंदाज कर गई। सफी, आई एम सॉरी यार। उसे अब अपनी गलती माननी पड़ी। वाह, पहले इतना डांट दिया और फिर सॉरी। वो तड़क कर बोली। मैं उस वक्त गुस्से में था। तो इसका मतलब है जब गुस्से में होंगे डांटेंगे। जाएं, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आप जाएं, जहां आपका दिल करता है कर लें। एकदम से ट्रैक बदलते वो रोने पर आ गई। पहले जितनी ज्वालामुखी लग रही थी, अब उतनी ही मासूम बन गई। सूसू करते कहते 16 साल मासूम लड़की उसे सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। 10 साल की उम्र में उसका निकाह अपने से 6 साल छोटी कजन से कर दिया गया था। इस वक्त उसे हालात का अंदाजा न था, मगर वक्त के साथ उसे रिश्ते की नौयत का एहसास हुआ। फिर वो उसके दिल की मकीन बनी। फिर धीरे धीरे उसका जुनून बन चुकी थी। शादी तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे।
دائم خانزادہ نے کہا اور اگلے ہی پل اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جو اس رفتار کے لیے تیار نہیں تھی، اگلے ہی پل کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ اسے اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دائم خانزادہ نے اس کی طرف جھکتے اس کی لرزتی پلکوں پر پھونک ماری۔ اس کی عمر اور ذہن کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے رشتے کی حدود متعین کی تھی۔ کوئی بھی قدم جلد بازی میں اٹھا کر وہ اس کی معصومیت چھین نہیں سکتا تھا۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ سیدھی ہوئی۔ غصے کی جگہ حیا نے لے لی تھی۔ صفی یار، میں صرف تمہاری حفاظت کے خیال سے منع کرتا ہوں۔ ناراضگی تو وہ خود بھی اس کی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، اس لیے اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ اس کا نارمل رویہ دیکھ کر وہ پر اعتماد بنی۔ اچھا یار، اس دفعہ مان جاؤ، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اسے ہر حال میں اسے ابھی منانا تھا۔ فوڈ اسٹریٹ لے جانا پڑے گا، فرمائش حسب توقع تھی۔ منظور، وہ دل و جان سے راضی تھا۔ جو میں کھاؤں گی کھانے دیں گے؟ لسٹ بڑھی۔ بالکل، دائم نے سر تسلیم خم کیا۔ پیک بھی کروا دیں گے؟ اسے ہر بات مانتے دیکھ وہ مسکرایا۔ پورے ہفتے کا لے لینا۔ اب کی بار اس نے خود آفر کی۔ چلیں پھر، آپ ہی کو بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ ہانیہ کے بغیر نہیں جاتی تھی۔ اسے مجبور نہ کرنا، پیپر قریب ہے۔ وہ بہن کی فکر میں بولا۔ تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ وہ بھاگ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے لے کر آئے گی، اسی لیے وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ میں اس گاڑی میں نہیں جاؤں گی، اس نے آتے ہی منہ پھلایا۔ دائم نے دادا جان کی کیا کی چابی اس کے سامنے لہرائی، جس کی وہ اجازت لے چکا تھا۔ واؤ دائم، یو آر گریٹ، وہ اس کے کندھے سے لگی۔ چلو اب۔ وہ اس کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول گیا، جس پر وہ چہکتے ہوئے اندر بیٹھی، پھر اس نے ہانیہ کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر میں وہ انہیں لیے فوڈ اسٹریٹ کی طرف لے گیا، جہاں انہوں نے گول گپے، دہی بھلے، چاٹ، تندوری چرغا کھایا۔ وہ دونوں آرڈر کرتی تھیں، ختم دائم کو کرنا پڑتا تھا۔ خوب مزہ کر کے وہ کافی لیٹ گھر پہنچے۔ چائے بھی وہ راستے سے پی کر آیا تھا، جس کے بدلے ان کو آئس کریم کھلائی تھی۔ ان سب کے بعد وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ سب اس کے لیے سکون کا باعث تھا۔ مسفرہ اس کے دل کی دھڑکن تھی، جس کی ہر خوشی اس کے لیے اہم تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے کتابوں میں سر کھپانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہوئی۔ وہ چائے کا کہنے ہانیہ کے پاس آئی، جو خود بھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ کتابوں سے سر اٹھاتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہانی، ایک کپ چائے تو بنا دو۔ وہ اسے کمرے میں رکھ کے صوفے پر بیٹھا۔ جی بھائی، میں لاتی ہوں۔ وہ خود بھی اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کتاب لیے لیٹی مسفرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ہی میرے لیے نئی بک لائی ہیں۔ وہ کوئی معلوماتی کتاب تھی۔ جب تم شرارتیں کرتی ہو، تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم پڑھائی میں اتنی اچھی ہو یا پھر کتابوں کی شوقین ہو۔ وہ اس کی شخصیت کے الگ الگ رخ پر حیران ہوتا تھا۔ تو کھیلنے کودنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان پڑھنے میں نکما ہو۔ اس نے ناک چڑھائی۔ چلو دل لگا کر پڑھو اور جلدی سے پڑھائی مکمل کرو۔ اس کا لہجہ کچھ بدلا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا جلدی ہے؟ اب وہ کتاب رکھتے سیدھی ہوئی۔ میں تو لندن چلا جاؤں گا، تو پھر تمہاری فکر کون کرے گا؟ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا بات بدل گیا۔ اس کا ارادہ ہائر اسٹڈیز باہر سے کرنے کا تھا۔ آپ کا جانا ضروری ہے؟ وہ اداس ہوئی۔ ترقی کے لیے باہر سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے خود بھی سب سے دور جانا مشکل تھا۔ ہمارے پاس گھر، کاروبار، سب کچھ تو ہے، پھر مزید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی سوچ کے تحت بولی۔ حالات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھی ایجوکیشن کے ساتھ میں اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس کے اپنے بھی کچھ خواب تھے۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی، اس نے دل کی بات کہہ دی۔ اس کے لیے ٹائم ایک اچھے کزن اور دوست کی طرح تھا۔ وہ صرف اپنے اور اس کے رشتے سے آگاہ تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی محسوسات نہیں تھی۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گا۔ تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا۔ اتنی دیر میں ہانیہ چائے کے ساتھ سینڈوچ اور شامی بھی لے آئی۔ وہ چائے سے لطف اندوز ہوتے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دائم پیپر کے بعد پروجیکٹ میں مصروف ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے بھی امتحان ہو رہے تھے۔ پروجیکٹ کے ساتھ دائم باہر جانے کی تیاریوں میں تھا، اسی لیے وہ اچھی یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہا تھا، جس میں رزلٹ کے بعد اس کا سلیکشن ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ گھر والے بھی اس کی کامیابی پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ مسفرہ بھی اپنے اسکول میں فرسٹ اور ضلع میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کا ارادہ اب مخلوط کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر دائم اس فیصلے کے خلاف تھا، کیونکہ کچھ عرصے سے اس کی دوستی کچھ اپر کلاس بچوں سے ہو گئی تھی جو الگ ماحول کے تھے۔ وہ صرف اس کی ذہانت کو کیش کروانا چاہتے تھے۔ مسفرہ ان کے ارادوں سے انجان، صرف ایڈونچر کے شوق میں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ آزادانہ گھومنے پھرنے کی عادت ہے، اور مسفرہ بھی بنا روک ٹوک کے رہنے کی عادی تھی۔ دائم کو یہی ڈر تھا کہ مسفرہ کسی غلط راہ پر نہ لگ جائے۔
आखिर वो कम उम्र थी। उसकी दुनिया मोहब्बत करने वालों के लाड प्यार से सजी थी। वो दुनिया के मकरूर फरेब से अनजान थी, नहीं जानती थी दुनिया में कैसे कैसे भेड़िए पाए जाते हैं। अभी भी वो शाम की चाय पर सबके साथ बैठा था जब दादी ने मुस्फरा का एडमिशन उसके दोस्तों के साथ करवाने को कहा। मैं इसका एडमिशन उस कॉलेज में हरगिज नहीं करवाऊंगा। उसका अंदाज दो टोक था। मियाँ, मैंने तुमसे राय नहीं ली, अपना फैसला सुनाया है। हाजा बेगम अपने अजली उखड़ अंदाज में बोली। अहमद साहब को बीवी का अंदाज नागवार गुजरा। वहां बाकी सब भी परेशान हुए। और मेरी रजा के बगैर आप फैसला नहीं ले सकते, उसका एहसास मिल्कियत बोल रहा था। क्यों मियाँ, तो मुझ पर मिनिस्टर तो हरगिज नहीं लगे। उनका अंदाज इस्तेहज़ाइया था। मगर जिसके बारे में यह फैसला हुआ है वो मेरे हवाले से इस घर में मौजूद है। वो अब गुस्से में आ गया था। वो हवाला हमारी वजह से बना है और हम ये हवाला खत्म भी कर सकते हैं। वो अपने ज़म में इतनी सख्त बात कर गई कि सब साकित रह गए। दाइन तो झटके से उठा, उसका दिमाग गुस्से से फटने के करीब था। ये हवाला मेरी आखिरी सांस के साथ ही खत्म हो सकता है, तो जिसे खत्म करना है मेरी सांस रुकने का इंतजार करे। धारकर कहते वो घर से ही पैदल बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो सब तासुब से हाजा बेगम को देखते रह गए। मैंने मुस्फरा के मामले में हर फैसले का इख्तियार आपको दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हुदूद से गुजर जाएं। अहमद साहब ने सख्ती से कहा। आप मुझसे पासपोर्ट कर रहे हैं, अपने पोते का लहजा नहीं देखा? वो उलट बिगड़ी। वो अपनी जगह सही है। कोई भी गैरतमंद शौहर अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी बात नहीं सुन सकता। वो आज उनसे सख्त खपा थे। मुस्फरा मेरी नवासी है और इसके बारे में हर फैसला मैं करूंगी। वो हट धर्मी पर उतर आई। सिर्फ 2 साल और हैं। दाइम की पढ़ाई मुकम्मल करके आते ही मैं उसकी रुखसती कर दूंगा और फिर आप इसके मामले में हरगिज नहीं बोलेंगी। हतमी अंदाज में कहकर वो कमरे में चले गए। बाकी सब भी फिलहाल वहां से उड़ गए। हाजा बेगम मुस्फरा पर सिर्फ अपना हक समझती थी, इसीलिए किसी बात को संजीदगी से ना लिया। दाइम चलते चलते काफी दूर आ गया। आखिर अपने गुस्से पर काबू पाते करीबी पार्क के बेंच पर आ बैठा। आज दादू ने उसके दिल पर वार किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि बात उसके रिश्ते पे आ जाएगी। वो कभी नहीं समझ सकती थी कि मुस्फरा उसके लिए क्या थी। पहले वो अपनी माँ के साथ उनसे मिलने आती थी तो वो अपनी फुफीजाद गुड़िया से खेलता फिरता। नरमीन के मरने के बाद वो उससे मिलने हाजा बेगम के साथ लाजमी जाता। उसकी प्यारी गुड़िया जब उनके घर आई थी तो काफी बीमार और बुरी हालत में थी। वो सब उसके लिए फिक्रमंद थे। उसके माँ, दादा, दादी सब हलकान थे। उसे परेशान देखकर मुसर्रत बेगम ने उसे दुआ करने को कहा, जिस पर वो जी जान से उस पर लग गया। आखिर उनकी गुड़िया वापस सेहतमंद होकर उनके साथ खेलने लगी। तो 10 साल का था जब 4 साल गोल मटोल से मुस्फरा के साथ उसका निकाह हुआ। उसकी माँ ने उसे तैयार करते हुए समझाया था कि वो अब उसकी होगी। ये बात दाइम के लिए खुशी का बाइस थी। वो मजीद उसका ख्याल करने लगा। वक्त के साथ रिश्ते की नौयत का एहसास होते उसके दिल में मुस्फरा का मुकाम भी बदलने लगा। अब वो उसके जिस्म में हर जर्रे में बस गई थी। कितनी आसानी से दादू ने उसे अलग करने की बात कर दी। कैसे? उसने गुस्से से हाथ बेंच पर मारा। काफी देर बाद आसमान की तरफ नजर डाली तो रात पड़ने का एहसास हुआ। न जाने घर से निकले उसे कितना वक्त हुआ था। आखिर उसने घर की तरफ कदम बढ़ाए। वो खुद अजियती का शिकार होते रिक्शा टैक्सी लेने के बजाय पैदल ही निकल पड़ा। काफी वक्त बाद जब थका हारा घर पहुंचा, मुसर्रत बेगम और हानिया उसकी मुंतजिर थी। कहाँ थे तुम? मुसर्रत बेगम ने बेचैनी से उसकी जानिब बढ़ी। बस पास ही था। वो गहरा सांस भरते उन्हें तसल्ली देने लगा। कॉल क्यों नहीं उठाई? फोन मिलाकर हाथ दुख गए। वो कब से उसके लिए परेशान थी। मोबाइल तो घर ही रह गया था। वो जल्दी में मोबाइल के बगैर ही निकल गया था। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। वो पीछे हटते हुए बोली। भूख नहीं है। उसका दिल कुछ भी खाने को न चाहा। चुप करके बैठो और खाना खाओ। उनके सख्ती से कहने पर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसके वापस लौटने तक हानिया खाना ले आई थी। मुसर्रत बेगम ने सामने बैठकर उसे खिलाया था। खाने के बाद वो चाय लाई। उसके चाय पीते ही वो उठकर चली गई। दाइम भी बेड पर गिर गया। न जाने कितनी देर सोचों से उलझने के बाद वो थकन के बायस नींद की आगोश में चला गया। सुबह उसकी आंख आने वाली कॉल पर खुली। उन्हें आज की ही फ्लाइट थी, इसीलिए फाइनल प्रोसेस के लिए एम्बेसी जाना था। वो जल्दी से तैयार होते बाहर भागा। कहाँ जा रहे हो? उसे निकलते देखकर मुसर्रत बेगम ने पूछा। अम्मी, एम्बेसी से कॉल आई है, मुझे फौरन पहुंचना है। वो निकलने लगा। नाश्ता तो कर लो। वो फिक्रमंद हुई। टाइम नहीं है। उसने वक्त देखा। भाई, मिल्क शेक ही पी लें। हानिया अपने लिए बनाया गिलास उसे दे गई। उसने जल्दी से गिलास पकड़ा। मम्मा, मेरी सारी पैकिंग कर दीजिएगा, बाकी सब मैं आपको कॉल पर बता दूंगा। वो कहकर गिलास खाली करके रखते बाहर चला गया। सारा दिन खपने के बाद वो शाम को फारिग हुआ। कॉल पर उसने हानिया को अपनी तैयारी के बारे में बताया।
वापसी पर वो अपनी जरूरत की सारी चीजों की शॉपिंग भी कर लाया था। इन सब में उसे रात हो गई। घर आया तो सभी उसके इंतजार में बैठे सारी तफसीलात जानने के ख्वाह थे। उसने सबको सारी बात बता दी। राफी की फैमिली भी मौजूद थी। यूं अचानक? 2 दिन पहले तो बताते। अहमद साहब का एतराज हुआ। अब्बा जी, ऐसे मामलात में ऐसा ही होता है, वो बेबसी से बोला। वो कुछ वो कुछ देर में इन सब से दूर जाने वाला था। चाहे तरक्की की राह में सही, मगर जाना तो जरूरी था। फिर भी कोई दावत रखे थे, उन्हें उसके जाने का बहुत दुख था। इंशाअल्लाह जब मैं लौटूंगा तो ग्रैंड फंक्शन करेंगे, उसने बुझे दिल के साथ तसल्ली दी। चलो खैर से जाओ। इतने में मुसर्रत बेगम ने खाना लगाया। वो सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। खाने के बाद वो कमरे में पैकिंग के देखने चला गया। तमाम जरूरी चीजों की तस्दीक की, डॉक्यूमेंट्स भी खुद रखे। अब बच्चे को कुछ देर सोने दो। कुतुब साहब उसके कमरे में आकर मुसर्रत बेगम से बोले। उसका चेहरा नजरों में भर रही हूँ फिर न जाने कब देखना नसीब हो। वो आज़दा हुई। फिक्र न करो, अगले साल से छुट्टियों में बुला लेंगे। उन्हें कम से कम माली मसाइल की रुकावट न थी। और साल में कितना वक्त है। उनके दिल की हालत हद से सवा थी। अम्मी अब मुझे वीडियो कॉल के जरिए रोज देख सकेंगी, उसने तसल्ली दी। चले, बच्चे ने लंबा सफर करना है। वो फिर बीवी से बोले। बाबा 2 घंटे तो रहते हैं, इसमें क्या नींद आएगी, आप लोग यहीं रहें। उसका दिल ये वक्त उनके साथ गुजारने का था। तुम्हारी इतनी लंबी फ्लाइट है, वो उसके लिए फिक्रमंद थे। फ्लाइट में मैंने सोना ही है। वो उन्हें वापस पास बिठा गया। ये 2 घंटे उन्होंने साथ गुजारे। 12 बजे वो जाने के लिए सबसे मिला। मुस्फिरा की गैर मौजूदगी महसूस करके वो उसके कमरे में गया, जहां वो सोफे पर ही लेटी थी। जागने की कोशिश में वो सोफे पर बैठी और वहीं सो गई थी। उससे बेसाख्ता उसका प्यार आया। करीब आकर उसके माथे से बाल हटाए और लब रखे। इससे दूर जाना कितना मुश्किल था, कोई उसके दिल से पूछता। न जाने कितनी देर वो उसे महसूस करता पीछे हटा। उसको उठाने का ख्याल जहन से झटकते, उसका चेहरा निगाहों में बसाते वहां से रवाना हो गया। अगर वो जाग जाती तो उसे रोता छोड़कर जाना मजीद दुश्वार हो जाता। राफे का बेटा जैद उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। बाकी सबको उसने साथ जाने से मना कर दिया। इस उम्र में वो सब वहां परेशान होते। कुतुब साहब उसके मना करने के बावजूद उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए। रेगुलर चेकिंग के बाद वो जहाज में सवार हुआ। जहाज रनवे पर दौड़ते हवा में उड़ान भरते उसे अपनों से दूर ले गया। कुछ देर सबको याद करता आखिर वो आंखें मूंद गया। लंदन पहुंचने के बाद एक हफ्ता उसे सेट होने में लगा। अब उसकी रूटीन की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। मुसलसल भाग दौड़ की वजह से उसके घर की तफसीली बात ना हो सकी थी। मुस्फिरा के सिवा सब दो जुमलों की बात होती। आज उसने दोनों मुल्कों का टाइम ध्यान में रखकर कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बैर पर कॉल उठाई गई क्योंकि व्हाट्सएप कॉल थी। उसकी कॉल सुनते ही उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आखिर गहरा सांस भरते जवाब दिया। आपको क्या, जैसी मर्जी हूँ, नाक चढ़ाते कहा गया। ये उसकी नाराजगी का इजहार था। नाराज हो? वो उसकी अदा पर मुस्कुराया। आपको मेरी नाराजगी की क्या परवाह? अंदाज अभी भी नर उठा था। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारे नाराज होने से डर लगता है, दाइम सच्चे दिल से कह रहा था। झूठ। अगर आपको सच में परवाह होती तो मुझसे मिले बगैर न जाते। वो खफगी का इजहार करते उसकी वजह भी बयान कर गई, जिसे सुनकर दाइम के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। मगर मैं तो तुमसे मिलकर आया हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। कब? उसकी बात पर वो चिढ़कर बोली। जब तुम सोफे पे टेढ़ी मेढ़ी सो रही थी। वो तसव्वुर में उसका चेहरा देखते महसूस हुआ। आप सच में आए थे? तो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जी जनाब, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हें देखे बगैर इतनी दूर आ जाऊं? उसका लहजा गंभीर हुआ। मुझे उठाया क्यों नहीं? हकीकत जाने के बाद उसकी नाराजगी खत्म हो गई। मैं तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं देख सकता था, न ही तुम्हें रोता छोड़कर आने का हौसला था। उसके बात पर मुस्फिरा तो दंग रह गई। सफी, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। वो उसका चेहरा देखना चाहता था। मुझे नानो बुला रही है। उसकी आवाज का बोझलपन महसूस करती वो कॉल काटती भाग गई। यानी तुम पर मेरे जज्बात का असर होने लगा है। वो बात समझते मुस्कुराया था। उसने यूनी के बाद पहले मरहले में जॉब की तलाश शुरू कर दी थी। उसका इरादा किसी ऑफिस में तजुर्बा हासिल करने का था। वहाँ स्टूडेंट्स को ऑफिस में जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत न हारी और आखिरकार एक ऑफिस में मामूली सी पार्ट टाइम जॉब मिली। उसके लिए वही गनीमत था। उसका अपना खर्च तो कुतुब साहब भेजते थे। पहले तनख्वाह पर उसने सबके लिए मुनासिब से गिफ्ट भेजे। मुस्फिरा के लिए तो अब भी वो ऑनलाइन गिफ्ट भेजता रहता था।
آخر 6 माह बाद उसकी एक मुनासिब पोस्ट पर प्रमोशन हुई। वो घर वालों के साथ मुसलसल राब्ते में था। 1.5 साल बाद उसकी पढ़ाई मुकम्मल होते उसका इरादा वापस लौटने का था, मगर उसकी कंपनी ने उसकी प्रमोशन करके अच्छी खासी जॉब की ऑफर की। दाइम ने इस मौके को गनीमत जानते कुतुब साहब से इजाज़त लेकर जॉब ज्वाइन करते मजीद 2 साल लंदन में रहने का फैसला किया। उसके वहाँ रहने की वजह से मुसर्रत बेगम और मुसफिरा उससे खफा हुई। वो उनको मनाने जाना चाहता था, मगर वक्त ही नहीं मिल सका। इधर मुसफिरा ने दाइम के जाने के बाद अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज जाना शुरू कर दिया। वो उसकी जहानत से खूब फायदा उठा रहे थे। वो अब कॉलेज की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगी थी। कॉलेज के बाद उनका ग्रुप आवारागर्दी करते पाया जाता। वक्त के गुजरते इन 2 सालों में उन्होंने शहर का हर कैफे और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया था। ना उसे पैसे की कमी थी, ना घर में रोक टोक। वो खूब अपनी जिंदगी इंजॉय कर रही थी। उसका रहन सहन और पहनना ओढ़ना काफी बदल गया था। वक्त के साथ उसके जज्बात भी दाइम के लिए बदल गए थे। अब उसे अपने रिश्ते की अहमियत का एहसास था। डायन की वापसी का सुनकर वो बहुत खुश थी, मगर उसके ना आने पर वो काफी नाराज हुई। बहुत मुश्किल से डायन ने उसे राजी किया था। आज वो अपनी दोस्त हबीबा की बर्थडे पर उसके घर आई थी। ये दरअसल दोस्तों की गेट टुगेदर थी। हबीबा की बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी होनी थी, जो उसके बाबा के आउट ऑफ कंट्री होने पर अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी हो गई थी। इसीलिए उसने अपने दोस्तों के लिए गेट टुगेदर रखी थी। साथ उसके कुछ कजन्स भी थे। उसने डार्क और लाइट ग्रे प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट पर लाइट ग्रे शर्ट पहनी थी। हानिया ने उसका हल्का सा मेकअप किया था। इस मामले में अभी भी वो कोरी थी। वाइट गोल्ड की बालियां, ब्रेसलेट और लॉकेट सब दाइम का भेजा ही था। उसे वाइट गोल्ड की ज्वेलरी पसंद थी, तो दाइम वही भेजता था। हानिया को उसका दुपट्टे से बेनियाज वजूद मुनासिब न लगा, तो उसने अपनी एक जैकेट उसे पहनने के लिए दी, जो उसके ड्रेस पर सूट कर रही थी। तैयार होकर उसने खुद को देखा तो जैकेट में वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। कुतुब साहब खुद उसे छोड़कर मार्ट गए थे। उसके कॉल करने पर उन्होंने लेने आना था। उनका पूरा ग्रुप मौजूद था, जिसमें उसके अलावा 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। उनके बैठने का इंतजाम ड्राइंग रूम में किया गया था। घर पर सिर्फ हबीबा की मॉम थी। केक काटने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। उन्होंने उन सबके लिए खाने का अरेंज किया था। खाने के बाद ड्राइंग रूम में वो मस्ती करने लगे। पहले गेम्स खेले, फिर एलईडी लाइट्स ऑन करके माहौल एकदम बदल गया। उन्हें मस्ती करते करते 11:30 हो चुके थे। इतने में मुसर्रत बेगम की कॉल आ गई। शोर के बायस वो कॉल अटेंड करने बाहर चली आई। वो उनकी वापसी का पूछ रही थी। उन्हें जवाब देकर मोबाइल जैकेट में ही डाल दिया। उसके अंदर दाखिल होते किसी ने उसे खींचकर दीवार के साथ लगाया। दर्द की शदीद लहर उसकी कमर में उठी। इस जारहाना अमल से वो एकदम साकित हो गई। लड़की चाहे कम उम्र हो या नादान, मर्द का लम्स फौरन पहचान जाती है। अभी भी वो खतरे को महसूस करते साकित हो गई। वो सामने वाले का चेहरा ना देख सकी, क्योंकि जानबूझकर हिस्से की लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। वो उस पर झुकने की कोशिश में था। उसे खुद पर हावी होते देखकर उसका सकता टूटा। सामने वाला शायद उसकी काबिलियत से वाकिफ नहीं था। वो मुस्फिरा को जानता था, सफी को नहीं, जो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलकर बड़ी हुई थी। रोज किसी न किसी लड़के को पीट आती थी। इतना तड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं बनने वाली थी। आंखें बंद करके उसने अपनी सारी हिम्मत मुज्तमा की और अपनी हील खींचकर सामने वाले के टखने पर मार दी। दर्द के मारे उसकी चीख निकली और उसके हाथों पर गिरफ्त ढीली पड़ी। इस चीज के लिए वो पहले ही तैयार थी, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद करवाया और उसे धक्का देकर बाहर की तरफ भागी। चाहकर भी वो घर के अंदर ना जा सकी। बाहर हर तरफ रोशनी थी। पूरा घर जगमगा रहा था। वो भागकर चौकीदार के कैबिन के सामने रखे बेंच पर बैठी और जैकेट से फोन निकालकर कुतुब साहब को कॉल करके आने का कहा। उसकी जल्दी में कहे जुमले की वजह से वो उसकी हालत न भांप सके। उसने मुड़कर कोठी की तरफ देखा कि वो अब उसके पीछे न आया हो। हिम्मत करके खुद को बचा तो लिया था, मगर अब दिल धक धक कर रहा था। वो एक कयामत से गुजरी थी, जिसके आसार का खौफ अभी भी था। अगर वो शख्स वापस आकर उसे ले गया तो वो क्या करेगी? चौकीदार तो मालिकों से नहीं लड़ सकता। रात की खामोशी और सन्नाटे में जैसे एक नए डर ने सर उठाया। घबराकर उसने हानिया को कॉल मिलाई ताकि किसी अपने से राब्ते में रह सके। पहला ख्याल तो दाइम का आया, मगर वक्त का फर्क देखते इरादा बदल गई। हेलो, हानिया ने नींद में डूबी आवाज में कहा। हेलो हानिया आपी, वो बेताबी से बोली। क्या हुआ सफी, कहाँ हो अभी? उसने वक्त देखते पूछा। मैं अभी हबीबा के घर हूँ। मुड़कर देखा, कोई भी उसके पीछे नहीं आया था। तुम लोग अभी निकले नहीं? उसे लेट होने का एहसास हुआ। मामू रास्ते में है। मैंने सोचा आपको पार्टी का हाल बता दूं। अपनी हालत छुपाकर अब वो उसकी बातों का जवाब देने लगी। खुद तो पार्टी एंजॉय कर ली और अब ख्याल आया कि आप ही की भी नींद खराब कर दी जाए। उसने हल्का सा तंज किया। कैसी बहन है, थोड़ी देर बात नहीं कर सकती? मैं सब बाहर चौकीदार के कैबिन के सामने अकेली बैठी आपको कॉल कर रही हूँ और आपको तंज की पड़ी है। उसने अपनी बचकाना अंदाज में कहा, जो घर वालों से बात करते वक्त उसका खासा था। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी।
تم بتاؤ نا پارٹی کیسی تھی؟ وہ اس کو ناراض ہوتے دیکھ اس سے باتیں کرنے لگی. اپنا ذہن بٹانے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے علاوہ ساری تفصیل سنانے لگی، جس میں دوستوں کے ڈریسز جیولری میں بتانے کے بعد کھانے کی ایک ڈش پر تبصرہ کرنے لگی. ہانیہ کو اس کی فضول باتوں پر حیرت تو ہوئی، مگر اس کے اکیلے ہونے کا سن کر اسے ٹوکا نہیں تھا. 15 منٹ بعد باہر گاڑی آ کر رکی تو مسفرہ چونکی. ساتھ ہی اس کے نمبر پر قطب صاحب کی کال آنے لگی. ہانیہ 1 منٹ رکے، میں ماموں کی کال سن لوں. اسے ساتھ رہنے کا کہہ کر اس نے قطب صاحب کی بات سنی جو باہر آنے کا کہہ رہے تھے. ان کے کہتے ہی وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی کہ لمحے کی دیر کیے بغیر وہ یہاں قید کر لی جائے گی. گاڑی میں بیٹھ کر ہی اس نے ہانیہ کی کال کاٹی. بچے کیسی تھی پارٹی؟ قطب صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا. اچھی تھی، بمشکل مسکراہٹ کھینچی. مزہ کیا؟ وہ مزید پوچھنے لگے. بس ماموں وہاں اتنا میوزک تھا کہ میرے کانوں میں چبھنے لگا، اب سر درد ہو رہی ہے. اس نے کتنی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا وہی جانتی تھی. ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ فکر مند ہوئے. بس گھر جا کر سوؤں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. انہیں جواب دیتے وہ سیٹ کی بیک سے سر ٹکا گئی. آج اس نے دن کا سب سے بڑا صدمہ سہا تھا، اس دن سے بھی بڑا جس دن اس کی ماں مری تھی یا جس دن باپ لا تعلق ہوا تھا، کیونکہ سپنوں سے پردوں میں چھپا لیا تھا. شاید اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو اسے اتنی محبت نہ ملتی، نہ ہی اس کے اتنے لاڈ اٹھائے جاتے. سب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے، مگر آج یہ صدمہ وہ اکیلی سہ رہی تھی. نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، دل نے دہائی دی. اس کے ایک دفعہ کہنے پر ہانیہ اپنی نیند قربان کیے 15 منٹ تک اس کی فضول باتیں سنتی رہی تھی، اور قطب صاحب اپنی نیند خراب کیے اس کے لیے سڑکوں پر خوار ہو رہے تھے. یہ مسفرہ ہی تھی جس کو اتنی آزادی تھی، ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت، ورنہ ہانیہ کو یہ سب نہ ملتا. یہ شاید اپنے باپ کا احساس کرتی، کبھی انہیں اتنی رات میں زحمت نہ دیتی. ان سب نے ہمیشہ اسے اتنی محبت دی، اور وہ اپنی خوشیوں کا سوچتی رہی. دن میں اپنی خود غرضی پر ٹیس سے اٹھی. ایک بار پھر ذہنی روح بھٹکی اور آج کے حادثے کی طرف گئی. اگر وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکتی تو کیا ہوتا؟ اسے اللہ نے بچا تو لیا، اگر وہ شخص اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو کیا بنتا؟ اتنی سنسان کوٹھی میں وہ کسی بھی جگہ کھینچ کر لے جاتا، کسی کو خبر ہی نہ ہوتی. وہ وہاں سے بھاگنے کے بعد 15 منٹ تک باہر بیٹھی رہی. اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا، نہ ہی اس کی کمی محسوس ہوئی. یعنی وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اس کے جانے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا تب بھی وہ یوں ہی غافل ہی رہتے. آج اسے سمجھ آ گیا کہ وہ سب اس کے دوست نہیں تھے، اور دوسرا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا اس کے دوستوں میں سے کوئی تھا، کیونکہ حبیبہ کے گھر میں باہر والا کوئی نہیں تھا، اور ملازم ایسی حرکت کر نہیں سکتا. دوسرا اس کا حلیہ ملازم والا نہیں تھا. انہی سوچوں میں اسے گھر پہنچنے کا پتہ نہ چل سکا. ہوش تو تب آیا جب قطب صاحب نے ہارن دیا. مسرت بیگم نے گیٹ کھولا. وہ بھی ان کا انتظار کر رہی تھی. اسے مزید پشیمانی ہوئی. ایک دم دل بھر آیا تو وہ گاڑی سے نکلتے ان کے گلے لگی. وہ اس کی حرکت پر پریشان ہو گئی. کیا ہوا صفی؟ وہ اس کا بازو سہلانے لگی. وہاں بہت شور تھا تو سر میں درد ہونے لگا. اس کے اب آنسو بہنے لگے. نظر لگ گئی ہوگی. لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی. وہ اسے کندھے سے لگاتے گھر کے اندر کی طرف بڑھی. اسی لیے کمرے میں آئی تو ہانیہ بھی جاگ رہی تھی. اسے کیا ہوا؟ اسے ماں کے ساتھ لگے دیکھ کر وہ بولی. سر میں درد ہو رہا ہے. اس نے بیڈ پر لٹایا. کچھ کھاؤ گی؟ لاؤں کچھ؟ اس کے پاس بیٹھتے ہانیہ نے پوچھا. بس سوؤں گی، نانو کو مت بتائیے گا. وہ اوپر اٹھتے ایک کوٹ نکال کر واپس بیٹھ گئی. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہانیہ اس کا سر دباؤ، بیٹی کو کہہ کر انہوں نے اسے دم کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. ہانیہ کافی دیر اس کا سر دباتی رہی، جس سے سکون محسوس کرتے وہ نیند میں چلی گئی. اس کے سونے کا یقین کرتے ہانیہ اس کے ساتھ لیٹی. اس چیز کا صدمہ لے کر اگلے دن وہ بخار میں پھنک رہی تھی. سب گھر والے پریشان ہو گئے. حاجہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا. ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوا لکھ دی تھی. 2 دن بعد بخار کا زور ٹوٹا. اس کی طبیعت بحال ہونے پر سب نے شکر ادا کیا. تائم کو پتہ چلا تو اس نے کال کی. کیسی ہو؟ اس کی بیمار شکل دیکھتے پریشانی سے بولا. آپ کو کیا پرواہ ہے؟ اس کے جیسے آنسو جھلکنے لگے تھے. آج اسے دائم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی. اگر آج وہ ہوتا تو مسفرہ خاموشی سے واپس نہ آتی. وہ دائم کے ہاتھوں شخص کی درگت ضرور بنواتی. تم سے زیادہ پرواہ تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ دل سے بولا. اگر ایسا ہوتا تو آپ وہاں جاب کرنے کے بجائے واپس آ جاتے. نور اٹھے انداز میں شکوہ کیا. تم دادو کو مناؤ، میں اگلی فلائٹ میں آ جاتا ہوں. اس کا لہجہ گمبھیر ہوا. کس بات کے لیے؟ وہ اس کی بات سمجھ نہ سکی. وہ آج ہماری رخصتی کی ڈیٹ فکس کریں. میں کل کی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جاؤں گا. اس کے کہنے پر وہ ہڑبڑائی. ابھی ایسا کچھ نہیں ہوگا. بمشکل اپنے تاثرات پہ قابو پایا. کیوں؟ ابھی مجھے BS کرنا ہے، اس میں 4 سال لگیں گے. وہ خود پڑھائی کی شوقین تھی. پھر میں بھی تبھی لوٹوں گا.
اس نے گہرا سانس بھرا۔ آپ آ جائیں نا، باقی سب بعد میں ہو جائے گا۔ مسفرہ کے لیے بھی اس کے بغیر رہنا مشکل تھا اور پڑھائی بھی ضروری تھی۔ دیکھو صفی، اب تم خود سمجھدار اور اب میں وہاں آیا تو میرے لیے مشکل ہوگی، اسی لیے تم پڑھائی مکمل کرو، تب تک میں آ جاؤں گا۔ اس کے بدلے لہجے پر وہ کال کاٹ گئی۔ اس کی اپنی رنگت بھی تب کر سرخ تھی، دل الگ لے پر دھڑک رہا تھا۔ آخر ان سب سے گھبرا کر وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ دائم سے بات کر کے اس کی بیماری کہیں دور بھاگ گئی اور وہ بالکل فریش ہو گئی۔ اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ اس کی دوستیں جو اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی میں داخلے کا کہہ رہی تھیں، مسفرہ نے ان کو انکار کر کے ہانیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ ایم فل کرنے والی تھی۔ ہانیہ کا رشتہ مسرت کی کزن کے بیٹے سے ہو گیا تھا، شادی ایم فل کے بعد ہونی تھی۔ وقت 2 سال مزید آگے سرکا۔ مسفرہ بی ایس کے 5ویں سیمسٹر میں تھی اور ہر بار کی طرح ہر سیمسٹر میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی حسین ہو چکی تھی۔ اب کی اور 2 سال پہلے کی مسفرہ کی چال ڈھال میں خاصا فرق تھا۔ ہانیہ کا بھی ایم فل مکمل تھا، اب جلد ہی اس کی شادی متوقع تھی۔ دائم نے کہہ رکھا تھا کہ اسے شادی سے 1.5 ماہ پہلے بتایا جائے تاکہ وہ خود آ کر اپنی بہن کی شادی کے انتظامات کرے۔ ہانیہ کے سسرال والے 1.5 ماہ بعد شادی کا کہہ گئے۔ حتمی تاریخ دائم کے آنے کے بعد طے ہونی تھی۔ دائم نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تو کمپنی نے لمبی چھٹی دینے سے انکار کر دیا، اسی لیے وہ جاب سے ریزائن دے کر وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ تاریخ طے ہونے کے 10 دن بعد وہ پاکستان پہنچ رہا تھا۔ اس نے گھر والوں کو 2 دن بعد کی فلائٹ کا بتایا تھا۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لیتے وہ گھر کے لیے نکلا۔ گھر والوں کے متوقع تاثرات سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ گھر کے سامنے پہنچا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا فجر کے لیے سب جاگ رہے ہوں گے، اسی لیے گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا ہی نہیں۔ احمد صاحب اور قطب صاحب جو فجر کے لیے اٹھے، اس مسلسل بجتی گھنٹی پر ہڑبڑا کر باہر بھاگے۔ مسرت بیگم بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ دروازہ کھلتے دائم پر نظر پڑی تو ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کے تاثرات سے محظوظ ہوتے وہ سب سے آگے کھڑے احمد صاحب کے گلے لگا، جو اپنے پوتے کو دیکھ کر پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ان سے الگ ہوتے وہ باپ کے گلے لگا، جو اسے 4 سال بعد دیکھ کر خود میں بھیج گئے۔ باپ چاہے لفظی اظہار نہ کرتا ہو، مگر اس کے ہر انداز سے اظہار ہوتا ہے۔ ان سے مل کر وہ ماں کے سامنے گیا، جو اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دائم کی اپنی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ بڑی مشکل سے انہیں سنبھالتے اپنے حصار میں لیے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ مرد تو فجر پڑھنے چلے گئے۔ کچھ دیر سب ساتھ بیٹھے رہے، پھر دائم کو حاجہ بیگم کی کمی کا احساس ہوا۔ دادو نہیں اٹھی؟ دائم نے ماں سے پوچھا۔ وہ اب فجر کمرے میں پڑھتی ہیں، انہوں نے اسے نہارتے جواب دیا۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم کے ایک طرف نماز پڑھتی تھیں، یہ ان کی سالوں پرانی روٹین تھی۔ اب کافی کمزور ہو گئی ہیں، ناشتے کے وقت باہر آتی ہیں۔ ایسے کیسے؟ وہ ان سے بات کرتا تھا تو وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتی۔ وہ ہانیہ کا رشتہ زید کے لیے چاہتی تھی، مگر تمہاری چچی کو اعتراض تھا۔ بندی تو پہلے بھی ان کی نہ تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب دائم کے لیے ان کی بیٹی کا نہیں سوچا گیا تو کیوں اپنے بیٹے کے لیے ہانیہ کا رشتہ لیں۔ ان کے بتانے پر وہ فکر مند سا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ وضو کر کے جانماز بچھا رہی تھی جب دروازہ کھلنے پر متوجہ ہوئیں۔ اسے دیکھ کر ایک دم ساکت رہ گئیں۔ دادو؟ وہ ان کی طرف بڑھا تو وہ اس کے گلے لگ گئیں۔ میری غلطی کی کتنی بڑی سزا دی تو نے؟ وہ پرانی بات کا حوالہ دے گئیں۔ نہیں دادو، میں آپ سے ذرا بھی خفا نہیں تھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ان کے گرد حصار بنا کر ان کے سر کو چومتے بولا، اگر ناراض نہ ہوتا تو اتنا عرصہ دور نہ رہتا۔ یہ احساس وہ کب سے دل میں دبائے بیٹھی تھی، اب اسے اچانک سامنے دیکھ سب کہہ گئی۔ پیارے تو انہیں سبھی بچے تھے، مگر نواسی کے لیے وہ باقی سب کے ساتھ ناانصافی کر جاتی۔ آپ سے خفا ہو کر میں نے رب کو ناراض کرنا ہے کیا؟ وہ انہیں خود میں بھیج گیا۔ اب تو دور نہیں جاؤ گے؟ وہ آس سے بولی۔ نہیں، اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا، دائم نے یقین دہانی کروائی۔ ان کے نماز پڑھنے پر وہ مسرت بیگم کی تلاش میں کچن میں آیا، جہاں ایک سبز آنچل اس کی دھڑکن بڑھا گیا۔ وہ ایک جھلک میں سامنے کھڑے وجود کو پہچان چکا تھا۔ ٹرانس کی کیفیت میں وہ اس تک پہنچا۔ مسفرت دادی اور احمد صاحب کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ شوگر کی وجہ سے وہ فجر کے بعد انہیں دودھ کا گلاس کے ساتھ سیب کاٹ کر دیتی تھی۔ دائم دھیرے دھیرے چلتا اس کے پیچھے پہنچا۔ اسی دوران وہ پلٹی تو اچانک کسی کو اتنے قریب دیکھ کر ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، دائم نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ دائم پر نظر پڑتے ہی وہ بھی شوق میں چلی گئی۔ اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر دائم نے ہاتھ ہٹایا۔ دائم، اس کے لبوں نے سرگوشی کی، جس پر دائم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ سچ میں ہیں؟ اس کا لمس محسوس کرتے وہ بولی۔ اس کا سامنا مسرت بیگم سے نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ اس کے آنے سے پہلے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاں، میں سچ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا، مگر نگاہ ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔
गुजरे 4 सालों ने उसकी खूबसूरती में इजाफा किया था। बाल कमर तक लंबे हो चुके थे। जीन्स शर्ट की जगह शलवार कमीज ने ले ली थी। दुपट्टा अभी भी नमाज स्टाइल में ओढ़ा था। अब जाएंगे तो नहीं? दिल की सदा लबों पर आई। कभी भी नहीं। ये 4 साल इतने मुश्किल से गुजरे हैं कि दोबारा दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए अपने सीने से लगा गया। मुस्फिरा भी बिना कोई हिचकिचाहट महसूस किए उसकी बाहों में समाई। आखिर उनके दरमियान 4 सालों की दूरी थी। दिल का बेचैन होना तो बनता था। न जाने कितनी देर उसके हिसाब में खड़ी रही कि गेट लगने की आवाज़ आई। अहमद साहब और कुतुब साहब मस्जिद से वापस आ गए थे। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी। मैं नानों के लिए दूध लेने आई थी। वो जल्दी से ट्रे उठाकर वहां से निकल गई। दाइम कितनी देर उसकी खुशबू महसूस करता रहा। उसके आने की खबर हानिया तक पहुंची तो वो भी भागकर आई। बाकी लोग भी वहीं आ गए थे। वो सब काफी देर तक ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते रहे। आखिर हाजरा बेगम को पोते की भूख का एहसास हुआ तो हानिया मुस्फिरा को किचन की तरफ भेजा। फ्रेश होने वो अपने कमरे में आया तो हर चीज वैसी थी। कमरा बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा था जैसे बिना नागा सफाई की जाती हो। चादर और पर्दे नए लगाए गए थे। हालांकि वो बिना बताया आया था, फिर भी उसका कमरा तैयार मिला था। नाश्ता बनने तक वो फ्रेश होकर आ गया। थोड़ी ही देर में उसका पसंदीदा नाश्ता तैयार कर लिया था। नुसरत बेगम भी उनके साथ लग गई थी। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। साथ में हानिया की शादी की तैयारियों के मुतालिक बात हुई। नाश्ते के बाद वो सोने चला गया, जबकि बाकी सबको उसके दोपहर के खाने की पड़ गई। अहमद साहब ने तो मार्ट जाने से इनकार कर दिया, इसीलिए कुतुब साहब अकेले ही चले गए। दाइम तो ऐसा सोया कि शाम को उठा। तब तक राफे की फैमिली भी उससे मिलने आ चुकी थी। कुतुब साहब भी लौट आए। सबने मिलकर रात का खाना खाया। सबकी मौजूदगी में अहमद साहब ने वीकेंड पर दाइम की वापसी की खुशी में दावत रखने का फैसला किया, जिसमें तमाम करीबी रिश्तेदारों को बुलाने का इरादा था। दावत में हानिया के ससुराल भी मदऊ था, इसलिए सबकी मौजूदगी में शादी की बाज़ाब्ता तारीख भी रख ली गई। शादी की तारीख तय होते ही तैयारियां शुरू हो गईं। दाइम ने भी भाई होने का फर्ज निभाया और हर चीज़ अपने जिम्मे ले ली। कार्ड छपाने से बांटने और हाल बुक करवाने से सजवाने तक सब उसी ने करना था, मगर सबने उसने हानिया की पसंद को जरूर मद्देनजर रखा। अभी भी वो सबको शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रहा था। हाजरा बेगम भी साथ जा रही थी। दाइम के आने के बाद उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार आया था। बाकी सब तो पहले हानिया के लिए ड्रेस देख रहे थे, मगर दादो अपनी मोहब्बत से मजबूर हर ड्रेस को मुस्फिरा के लिए सोच रही थी। बाकी सब उनके अंदाज से मुस्कुरा दिए। उन्होंने सब घर वालों के लिए शॉपिंग की थी। मुस्फिरा की सारी शॉपिंग हाजरा बेगम की पसंद से थी। दाइम ने मुस्फिरा के लिए कुछ और सोचा था। अपनी सोच को वो बाद में अमली जामा पहनाने का इरादा रखता था। उनकी शॉपिंग अभी कितने दिन तक चलनी थी। मुस्फिरा अपने नए ड्रेसेस कबर्ड में सेट कर रही थी जब दाइम को शॉपिंग बैग लिए कमरे में दाखिल हुआ। आप यहाँ? वो उसके आने पर चौंकी। ये तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की है। वो सारे बैग उसकी तरफ बढ़ा गया। मेरे लिए? उसने खुशी से सारे बैग लिए। इसमें शादी के लिए ड्रेसेस थे। एक येलो और पर्पल लेटेस्ट शरारा था। एक पीच कलर का लहंगा था। साथ ज्वेलरी और बैग थे। बहुत प्यारे हैं। उसे सब बहुत पसंद आए थे। मैं चाहता हूँ तुम शादी में ये पहनो। उसने ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। मैं पहन तो लूँ, मगर जो ड्रेस नानू ने दिलवाए हैं वो थोड़ा उलझन का शिकार थी। शादी के इतने फंक्शन हैं, कुछ उनके दिलाए पहन लेना, कुछ इनमें से पहन लो। उसकी बात पर वो सर हिला गई। मैंने शामी बनाए हैं, खाएंगे? अब वो अच्छी कुकिंग करने लगी थी। साथ चाय भी ले आओ, मैं दादा अब्बू के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया है। वो कहकर अहमद साहब के कमरे में आ गया जहाँ सब बुजुर्ग बैठे थे। आओ दाइम, हमें तुमसे बात करनी है। उसके आने पर अहमद साहब बोले। जी। वो उनके साथ बैठा। हम चाहते हैं कि हानिया के साथ तुम्हारी और सफ़ी की शादी भी कर दी जाए। उनकी बात पर वो चौंका। तुम्हें कोई एतराज़ है? उसकी खामोशी पर वो बोले। नहीं, एतराज़ तो कोई नहीं, मगर मेरा ख्याल है हमें मुस्फिरा की पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए। वो उस पर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहता था। बेटा, सफ़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी है माशाल्लाह, कवर कर लेगी। वैसे भी वो इसी घर में रहेगी तो हम उस पर कोई इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। कुतुब साहब ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। चले आप पहले मुस्फिरा से पूछ लें वो क्या चाहती है। अगर उसके लिए मसला नहीं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया। थोड़ी देर में मुस्फिरा और हानिया चाय ले आई। मुस्फिरा के किचन में आने से पहले हानिया सबके लिए चाय रखकर कबाब तल रही थी। लो, सफ़ी आ गई, इससे पूछ लो। हाजरा बेगम के कहने पर सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सफ़ी बेटा, हम सोच रहे हैं कि आपकी रुखसती कर दी जाए। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अहमद साहब ने ही उससे पूछा। दाइम समेत सभी उसके चेहरे पर निगाह जमाए जवाब के मुंतज़िर थे। जैसा आपको सबको ठीक लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो सब उससे जितनी मोहब्बत करते थे उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकते थे। जहाँ उसके फैसले ने सबको खुश किया था, वहीं दाइम का दिल उसकी मोहब्बत में सरशार हुआ, मगर इसके बावजूद भी उसे
कुतुब साहब ने बेटे की सोच को जबान दी। मामू, अल्लाह का करम है कि पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। उसने दाइम का आखिरी खदशा भी ख़त्म कर दिया। चलो अब किसी और को तो एतराज़ नहीं? अहमद साहब ने सबसे पूछा। मैं कुछ बोलूँ? तभी हानिया की आवाज़ निकली, जिस पर अहमद साहब ने बोलने की इजाज़त दी। क्या हमारे माली हालात ख़राब हैं? उसकी गैर मुतवक्किल बात पर सब हैरान हुए। मतलब? सब बेसाख्ता बोले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम भाई का वलीमा अलग कर सकें। एक ही बार में तीनों को निपटाना ज़रूरी है। उसकी तफसील पर सबके उज़लाट ढीले पड़े। तुझे साथ शादी करने में क्या मसला है? हाजरा बेगम बोली। मेरा मसला ये है कि मेरा एक ही भाई और भाभी प्लस बहन है जिसकी शादी को लेकर मेरे कुछ अरमान हैं। अगर इनकी शादी मेरे साथ हुई तो मैं ज़रा भी इंजॉय नहीं कर पाऊंगी, और आपने तो मुझे घूंघट से सर भी नहीं निकालने देना। उसके नाक चढ़ाकर कहने पर सब मुस्कुरा दिए। अब जान, अगर हम ये शादी हानिया की शादी के 15-20 दिन बाद रखें तो? दाइम ने इकलौती बहन की ख्वाहिश का मान रखा। नाना अब्बू, हानिया आप ही ठीक कह रही हैं। मुस्फिरा ने हाँ में हाँ मिलाई तो सबको उनकी बात माननी पड़ी। दिन इतनी तेजी से गुजरे कि हानिया की मेहंदी का दिन आ पहुंचा। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। दाइम ने हर चीज़ बहुत खूबसूरती से तैयार करवाई थी। फूलों से लेकर लाइटें, खाना और सर्विस, हर चीज़ शानदार थी। लड़के वालों के आने पर बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर बाद हानिया को ब्राइडल रूम से लाया गया। वो मल्टी कलर के लहंगे के साथ फूलों की ज्वेलरी पहने लाइट से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे लाकर दूल्हे के साथ बिठाया गया। दाइम की निगाह तो मुस्फिरा से हट नहीं रही थी, जो उसका दिया गया शरारा पहने दिल के तार छेड़ रही थी। थोड़ी देर में रस्में शुरू हुई। रस्मों के बाद नौजवानों का हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। जैद ने डांस करते हुए दाइम को भी स्टेज पर खींचा। वो भी समझने की कोशिश में था कि वो मुस्फिरा को भी उसकी तरफ धकेल दिया। उसे गिरने के डर से वो उसे कमर से थाम गया। उसके इस अमल से सबने हूटिंग की। साथ ही म्यूजिक चेंज हुआ और एक रोमांटिक सा गाना प्ले हुआ। दाइम ने उसका हाथ थामा, गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। बाकी सारी यंग जनरेशन उसके गिर चक्कर लगाने लगी। बड़े भी बच्चों को खुश देखकर मुतमईन हो गए। हानिया की शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था। शादी की थकावट उतारते ही वो सब दाइम और मुस्फिरा की शादी की तैयारियों में लग गए। हाजरा बेगम तो एकदम जवान हो गई थी, हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आज वो लोग मुस्फिरा के लिए ब्राइडल ड्रेस पसंद करने एक बहुत बड़े आउटलेट पर आए थे। हानिया भी साथ थी। काफी वैरायटी देखने पर उन्हें कुछ समझ न आया। हमें बिल्कुल लेटेस्ट और यूनिक स्टाइल दिखाइए। दाइम के कहने पर मजीद डिजाइन पेश किए गए जो उनको बहुत पसंद आए। उनके पास पीच और रेड कलर में बहुत प्यारा लहंगा था जिस पर बहुत खूबसूरत काम था। उसे देखते ही हाजरा बेगम ने डन कर दिया। मुस्फिरा ने दाइम की तरफ देखा जिस पर वो डन का इशारा कर गया। साथ ही उन्होंने बाकी ड्रेसेस भी पसंद किए। इसके बाद उन्हें फर्नीचर देखने जाना था क्योंकि दाइम अपना कमरा रेनोवेट करवा रहा था। वैसे भी कितने साल से रेनोवेट नहीं हुआ था, हर चीज काफी साल पुरानी थी। हानिया की शादी पर भी उसे अपने कमरे का ख्याल ना आया। अब वो हर चीज मुस्फिरा की पसंद से चाहता था क्योंकि सब अपने अरमान पूरे कर रहे थे। क्योंकि दाइम मुसर्रत बेगम का इकलौता बेटा था, मुस्फिरा हाजरा बेगम की इकलौती नवासी। वो दोनों किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वक्त कम था, काम ज्यादा, इसीलिए वो दिन रात एक कर रहे थे। हानिया भी सुबह आती और शाम को लौटती। आखिर दुल्हा दुल्हन दोनों की इकलौती बहन थी। वक्त ने रफ्तार पकड़ी और मेहंदी का दिन आ गया। क्योंकि लड़का और लड़की एक ही घर से थे, फंक्शन मखलूत रखा गया। हाजरा बेगम की सख्त हिदायत पर मुस्फिरा को 3 दिन पहले माइयों बिठाकर मुकम्मल पर्दा करवा दिया गया। उनका पहरा इतना सख्त था कि दाइम भी ना तोड़ सका, इसीलिए चिड़ा हुआ था। वाइट सलवार कमीज पर ग्रीन बास्केट पहने वो मेन डोर की तरफ निगाह जमाए हुए था, जहां से उसके दिल की धड़कन ने जलवा अफरोज होना था। एकदम लाइट ऑफ होकर LED लाइट्स ऑन हुई। समा ऐसा बना कि जैसे हजारों जुगनू उड़ रहे हों। ऐसे में स्पॉटलाइट की रोशनी में वो आइस स्मोक में से चलती उस तक आ रही थी। साथ ही डीजे ने अली जफर का गाना जुगनू में भर ले आंचल चल रहा था। ये सारा इंतजाम उसी ने करवाया था, मगर अब उसी पर ही फंसू तारी था। सिंगर के बोल उसकी सोच की तर्जुमानी करते नजर आए। मुस्फिरा ने शॉकिंग पिंक गरारे पर ऑरेंज और येलो शर्ट फ्रॉक पहन रखा था। शॉकिंग पिंक नेट के दुपट्टे पर ऑरेंज और येलो काम था। चेहरा नेट के दुपट्टे से ढका था। ताजा फूलों का जेवर पहने वो महक रही थी। मेकअप के लिए भी हाजरा बेगम ने मना किया था कि रूप नहीं आता। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, दाइम ने हाथ बढ़ाकर सर खम किया। मुस्फिरा उसके साथ बैठी तो सब बड़ों ने उन पर कितने ही नोट वारे। उसके बाद रस्में शुरू हुई। घर की बात है, क्यों ना अभी रुखसती करवा लें। दाइम मौका पाते ही उसके कान के करीब झुका। उसकी बात पर वो हया से सुर्ख पड़ गई। बोलो ना, उसने छेड़ते हुए हल्के से कोहनी मारी। मुझे तो कोई एतराज नहीं। निस्टर लब दबाते उसने धीरे से कहा। जानती थी वो मजाक कर रहा है, इतना साथ तो वो दे सकती थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दादू के आने पर सीधा हुआ। मेहंदी की रस्म रात गए तक चली। अगले दिन बारात के लिए अफरा तफरी मची थी।
हॉल के सारे इंतजाम दाइम ने खुद करवाए थे, मगर आज उसके दुल्हे होने का एहसास करते जैद और वजाहत हानिया के शौहर ने बाकी काम संभाल लिए। बारात खूब धूमधाम से घर से निकली, जिसमें सभी शामिल थे। हॉल पहुंचकर अहमद साहब और राफी की फैमिली लड़की वाले बन गए, और तो भारी लहंगा पहने हानिया ने भी राफी की बेटियों के साथ मिलकर लड़की वालों की तरफ की तमाम रस्में की। इंतजाम से खाने तक हर चीज बेहतरीन थी। उन सबके बाद रुखसती हुई। चाहे इसी घर जाना था, मगर ये लम्हा हर लड़की के लिए नाजुक होता है। जहाँ बड़े आज नरमीन की कमी महसूस कर रहे थे, वहीं वो बाप के सरसरी तौर पर सीने लगाने पर बहुत दुखी हुई। उसके बाप समेत सारे ददियाल को बुलाया गया था, जो रस्मों में मेहमानों की तरह शामिल हुए। उससे दिली वाबस्तगी तो नहीं थी, वो इसके हालात जानने आए थे। उसकी हालत समझते कुतुब साहब और अहमद साहब ने उसे गर्मजोशी से हिसार में लेकर अपने होने का एहसास बख्शा। रुखसती के बाद एक बार फिर सब लड़के वाले बन चुके थे। घर आते ही सबने रस्में करते खूब मजा किया। मुस्फिरा भी अब सबकी शरारतों पर मुस्कुरा रही थी। उसकी थकन का एहसास करते औरतें उसे कमरे में ले गईं। वो भी चंद दोस्तों को अलविदा करके कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ हानिया अपनी उमरजादों के साथ रास्ता रोक के खड़ी थी। अब मैं समझा, तुमने मुझे लूटने के लिए मेरी शादी अलग करवाई, वरना तुम्हें ये सब करने को ना मिलता। वो उसके पांसा पलटने पर बोला, अब क्या किया जाए? दुल्हा दुल्हन दोनों मुझे एक से अजीज है। जल्दी से 50,000 निकालें। उसने नाक चढ़ाते डिमांड सामने रखी। लड़की, हाथ होला रखो, अभी मैं वेला इंसान हूँ। लंदन में पार्ट टाइम में जितना कमाया तुम लूट रही हो, कुछ तो मेरी मासूम बीवी के लिए छोड़ दो। उसने दुहाई दी। अपना गभरू जवान इकलौता भाई, वो भी लंदन से पढ़ा लिखा पूरे का पूरा दे तो दिया है, ये कम है क्या? उसने मान दिखाया। दे दे अगर अपनी दुल्हन को देखना है तो, वरना फिर न कहिएगा बताया नहीं। फायका के लहजे में तंबी महसूस करते उसने जल्दी से 50,000 उसे पकड़ाए, क्योंकि वो उन सब कजनों में सबसे ज्यादा खराब आती थी। उनके टलने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ तो वो कमरे में खड़ी उंगलियां चटखा रही थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? उसकी घबराहट महसूस करते हुए नरमी से कहते उसके करीब आया। लहंगा पसंद करते वक्त उसने सोचा नहीं था कि वो इतनी हसीन लगेगी। ज्वेलरी और मेकअप ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। जवाबन वो खामोश रही। रिलैक्स यार, हम वही हैं जो बचपन से साथ हैं, बल्कि अब तो हमारा रिश्ता मजीद मजबूत हुआ है। वो उसके सामने आते उसके दोनों हाथ थामते बोला था, जिस पर वो गहरा सांस भरते मुस्कुरा गई। आओ। डायन ने उसका हाथ थामे ही ले जाकर सोफे पर बिठाया। तुम्हें पता है, मेरी नजर में दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। जब बाकी सब छोड़ जाएं, यही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आज हम अहद करते हैं कि एक दूसरे पर मुकम्मल यकीन रखेंगे। इस नए रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, हर बात शेयर करेंगे, और अगर कोई बात राज होगी तो अगले की हुदूद का पास रखेंगे। वो उसके सामने बैठा गोया हुआ। वो उसकी तरफ देखकर उसकी बातों को हिफ्ज कर रही थी। दोगी ना? दाइम ने उसका हाथ हल्के से दबाया तो वह इस बात में सरहिला गई, जिसको वो खुद में समेट गया। उसने कितने साल इस लम्हे का इंतजार किया था। तब तो मुस्फिरा को इस रिश्ते की नौयत का एहसास भी न था। आज उसकी तलब को करार मिला था। एक वादा उसने खुद से भी किया था कि मुस्फिरा को अब गिने की तरह संभाल कर रखेगा।